تلنگانہ کے وزیر آئی ٹی کے تارک راما راؤ نے سنگاریڈی میں فلپکارٹ کے نئے فلفلمنٹ سینٹر کا ورچوئل افتتاح کیا۔ شہر حیدرآباد کے بیگم پیٹ آئی ٹی سی کاکتیا میں منعقد پروگرام میں کے ٹی آر نے شرکت کی اور فلفلمنٹ سینٹر کا ورچوئل طریقے سے آغاز کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس مرکز کے قیام پر کمپنی کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر آئی ٹی نے بتایا کہ فلپکارٹ کے اس فلفلمنٹ سینٹر کے ذریعے 40,000 لوگوں کو براہ راست روزگار ملے گا۔ ای کامرس سیکٹر کے تیزی سے ترقی کرنے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے روزگار کی فراہمی میں خواتین کو اولین ترجیح دیے جانے کا انکشاف کیا۔ آئی ٹی منسٹر نے تلنگانہ کو ملک کے لیے رول ماڈل بنانے پر زور دیا۔ آئی ٹی کے پرنسپل سیکرٹری جیش رنجن، فلپکارٹ سی ای او کلیان سمیت دیگر نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ So my request to Flipkart, Kalyan and his team, let's create a model, let Telangana make a statement to the country that even these gig workers will be taken care of through a tripartite arrangement between the government, between companies like Flipkart, and with, of course, a lot of your marketing and vendors and partners. Because when you give them the confidence that this is a job that you can aim at and that is something that is going to give you livelihood, and in case something goes wrong, your family, you will be taken care of, etc., etc. That is something that we need to also start looking at. Yesterday was Labor Day, as you all know, International Workers' Day. Now, we have to give confidence as India grows, as Telangana grows, as e-commerce grows. We have to start giving more thought to the idea of gig economy, gig jobs, and how we can take care of our youngsters. Because we are a young country. I keep getting a lot of messages, in my social media handles saying, for lack of better opportunities, I'm temporarily working either for, one e-commerce company or another. Now that needs to go away slowly, because we need to start building a credo. We need to start building an aspiration around working for e-commerce channels as well. Because if you are able to take care of their livelihood, if you're able to give them the confidence that this is actually a decent paying job, then I think, you'll be creating far more loyalty. And as a market leader in India, I think Flipkart should lead this from the front. I request you to kindly consider this, and let's create a unique model, and let's ensure that the rest of India follows. There was a saying at one point of time, what Bengal does today, India does tomorrow. But it has changed a bit, Kalyan, now. You don't visit us very often, but it has changed now. What Telangana does today, India does tomorrow. That's for sure. So let's make a statement to the rest of India as well, because if we make a statement in India, then you're literally talking about 1/5 of humanity. So therefore, I think this will also become a shining example for the rest of developing world as well. BRS के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामा राव ने किसानों को तसल्ली देते हुए कहा है कि हुकूमत किसानों को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। जिले राजन्ना सिरसला के एल्लारेड्डीपेट मंडल के गुंटापल्ली, चेरू और वेरनापल्ली में KTR ने गैर मौसमी बारिश से तबाह होने वाले धान के खेतों का मुआयना किया और किसानों से बात करते हुए तफसीलात हासिल की। खबलजी वजीर ने मस्ताबाद मंडल के गोपालपल्ली में भी धान खरीदारी मराकज का दौरा किया। राजन्ना सिरसला के कलेक्ट्रेट दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए KTR ने बताया कि 13 मंडलों में 19,000 एकड़ पर मुश्तमिल फसलों को नुकसान पहुंचा है। रियासत के हर किसान को पुरएतमाद होने का मशवरा देते हुए कारगुजार सदर ने हुकूमत की जानिब से किसानों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि बारिश से धान खरीदारी मराकज पर रखे गए अनाज को भी नुकसान पहुंचा है। हुकूमत की जानिब से उस अनाज को भी खरीदा जाएगा। तेलंगाना के डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट के इफ्तिताह के दावतनामे को लेकर तेलंगाना हुकूमत और गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन के दरमियान एक और तनाज़ा छिड़ गया है। CM KCR ने नए सेक्रेटरीट का 30 अप्रैल को इफ्तिताह किया है। इस तकरीब में 2,500 लोगों को दावतनामे भेजे गए थे। वज़ीर तवन्नाई जगदीश रेड्डी का कहना है कि गवर्नर इफ्तिताही प्रोग्राम में शरीक नहीं हुई। दूसरी जानिब राजभवन ने इस सिलसिले में बयान जारी करते हुए खुलासा किया है कि तमिलिसाई सुंदरराजन को कोई दावतनामा मौसूल ही नहीं हुआ। रियासती हुकूमत की जानिब से ये कहे जाने पर कि मदऊ किए जाने के बाद भी गवर्नर ने शिरकत नहीं की, गवर्नर की जानिब से इस बयान की तरदीद की गई है। BRS हुकूमत और गवर्नर के दरमियान तवील अरसे से सर्द जंग जारी है। हाल ही में गवर्नर की जानिब से हुकूमत के भेजे गए बिलों की मंजूरी से इनकार और
بلوں پر دستخط نہ کیے جانے کے تنازع کے چلتے سیکریٹریٹ کے افتتاح کی دعوت نہ دینا نیا تنازع بن گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت ہریش راؤ نے محکمہ صحت کے عہدیداروں کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں منعقد کیے گئے جائزہ اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ وزیر صحت نے عہدیداروں سے کہا ہے کہ 5204 اسٹاف نرسوں کی آسامیوں پر بھرتی کا عمل آن لائن موڈ کے ذریعے کیا جانا چاہیے۔ یاد رہے کہ اب تک 40,936 امیدواروں نے اس کے لیے درخواستیں داخل کی ہیں۔ حیدرآباد سمیت ورنگل اور کھمم نظام آباد میں امتحانی مراکز قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ہریش راؤ نے حکام کو بھرتی کے عمل کو شفاف بنانے کی ہدایتیں جاری کی۔ ضلع میڈچل ملکاج گیری کے بورڈ اپل میں اے سی بی عہدیداروں نے ایک اے ای کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ تفصیلات کے مطابق بورڈ اپل میں ودیوت اے ای پرساد بابو نے نوین نامی ایک کانٹریکٹر سے پینل بورڈ کے لیے 10,000 روپے کی رشوت طلب کی تھی۔ نوین کی شکایت پر اے سی بی حکام نے کارروائی کرتے ہوئے اے ای پرساد کو رشوت قبول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ بعد ازاں محکمہ اینٹی کرپشن کے اہلکاروں نے بجلی سب اسٹیشن کی تلاشی بھی لی۔ پرانے شہر کے منگل ہاٹ علاقے میں واقع ایک گھوڑے کی قبرستان پر دن دہاڑے لینڈ مافیا قبضہ کر رہا ہے۔ مقامی افراد میں وقف بورڈ سے وقف اراضیات کا تحفظ کرنے کی پرزور اپیل کی ہے۔ گھوڑے کی قبرستان پر قبضہ کیے جانے سے متعلق کئی خبریں شائع و نشر کیے جانے کے باوجود بھی وقف بورڈ ابھی تک حرکت میں نہیں آیا ہے۔ وقف بورڈ کے اراکین کی پشت پناہی اور حوصلہ افزائی نے لینڈ مافیا کے حوصلے اتنے بلند کر دیے ہیں کہ وہ بلا خوف و خطر وہاں تعمیرات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس قبرستان پر کیے جا رہے قبضے کے خلاف کئی بار شکایتیں کیے جانے کے باوجود وقف بورڈ خاموش تماشائی ہے اور کوئی کارروائی نہیں کر رہا ہے۔ وقف بورڈ ٹاسک ٹیم کے افسران بھی قبرستان کی حفاظت کو لے کر سنجیدہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ انکروچمنٹ سے متعلق شکایتیں کرنے پر وہ وہاں کا دورہ تو کر رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حکام کو اس سے متعلق اب تک کوئی بھی رپورٹ پیش نہیں کی گئی ہے، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں وقف اراضی کے تحفظ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہیں اپنا مفاد عزیز ہے۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے وقف کمشنریٹ قائم کرنے اور وقف بورڈ کو جوڈیشل پاور دینے کے جھوٹے وعدے ریاست بھر میں لینڈ گریبرز کے حوصلے بڑھا رہے ہیں۔ دوسری جانب وقف بورڈ کی تساہلی لاپرواہی ان لینڈ مافیا کی ہمت بن رہی ہے۔ گھوڑے کی قبرستان پر کی جا رہی تعمیرات اسی کا ثبوت ہے۔ مقامی لوگوں نے وقف بورڈ انچارج سی ای او خواجہ معین الدین اور وقف بورڈ چیئرمین محمد نصیر اللہ خان سے اس جانب توجہ دینے اور اوقافی اراضیات کا تحفظ کرنے کی اپیل کی ہے۔ شہر حیدرآباد کے بیشتر مقامات پر کھلے مین ہول، نالے اور پانی کے گڑھے عوام بالخصوص کم سن بچوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں۔ جوبلی ہلز علاقے میں پانی سے بھرے گڑھے میں گر جانے سے ایک 6 سالہ لڑکے کی موت واقع ہوئی ہے۔ محکمہ بلدی کے عہدیداروں کی لاپرواہیوں سے وقفے سے حادثات پیش آ رہے ہیں، لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ سکندرآباد کے خلاصی گڑا میں کھلے مین ہول میں گرنے سے 10 سالہ مونیکا کی ہلاکت ہوئے محض 4 دن ہی گزرے تھے کہ ایک اور واقعہ جوبلی ہلز میں پیش آیا ہے۔ جوبلی ہلز کے روڈ نمبر 45 پر 6 سالہ وویک ایک پانی کے گڑھے میں گرنے سے ہلاک ہو گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وویک کھیلنے کے دوران پانی سے بھرے گڑھے کے قریب چلا گیا اور گڑھے میں گر جانے سے اس کی موت ہو گئی۔ وویک کے افراد خاندان نے پڑوسیوں کی مدد سے لڑکے کو باہر نکالا۔ اطلاع ملنے پر پہنچی جوبلی ہلز پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کیا ہے اور واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے ریڈ ہلز ڈویژن کے محلہ جات میں جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ صدر AIMIM بیسٹ اسد الدین اویسی کی ہدایت پر نامپلی MLA جعفر حسین معراج نے بلدی، برقی، آب رسانی محکموں کے عہدیداروں کے ہمراہ ریڈ ہلز ڈویژن کے شیر گلی، بازار گھاٹ، بلال مسجد اور اطراف و اکناف کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کاموں کی تکمیل سے متعلق تفصیلات بھی حاصل کی اور متعلقہ حکام کو
उन कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लेने को कहा। रेड हिल्स के कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान, पार्टी के सीनियर लीडर्स व दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के एरिया के अंदर आज तफसीली दौरा किया गया है। इस दौरे के अंदर यहाँ के एरिया का नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब आरिफ रिजवान साहब, साबिक़ा हमारे कारपोरेटर नसरुल्लाह साहब, अफजल साहब सीनियर लीडर और इसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर, मोतमदीन, एक्टिव वर्कर सब के सब आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के रेड हिल्स के दौरे में थे। रेड हिल्स का ये जो दौरा हमारा मेन मकसद ये है कि हम आवाम में के दरमियान में जाना है, आवाम के जो भी छोटे मोटे मसाइल जो पेंडिंग है उसको हल करना है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास इंस्ट्रक्शन के ऊपर नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रेगुलर पूरी असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के हर डिवीज़न में दौरे चल रहे हैं। ये दौरे का मेन मकसद ही यही है कि हम आवाम के बीच में जाए। तो हमारा मेन ये है कि इंशाअल्लाह ताला रेड हिल्स डिवीज़न के अंदर जो भी काम आज छोटे से बताए गए हैं या जो भी काम है वो काम को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। इसीलिए मेरे साथ में GHMC, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी, अदर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर सब के सब हमारे साथ में आज के दौरे में मौजूद थे। मैं तमाम ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ जितने लोग भी आज दौरे के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले, बस्ती वाले, मस्जिद कमेटी और दीगर लोग भी जो यहाँ पर मौजूद थे, इन सब के शुक्रिया के साथ साथ हमारी पार्टी के सदर, मोतमदीन, एक्टिव वर्कर, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हों। वे आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। और एक चीज़ जो एक ज़माने से नीलोफर हॉस्पिटल से अक्सर एक ओवरफ्लो हो जाता था, जिसको काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी ओवरफ्लो ख़त्म नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कहाँ से हो रहा कैसा पता नहीं चल रहा था। उसके लिए ख़ास नक़ीब मिल्लत की ख़ास इंस्ट्रक्शन के ऊपर हमने एक नया SWD NP2 पाइपलाइन सैंक्शन किया। उसका काम इमीडिएट चालू हुआ है। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द तकमील हो जाएगा। उसके बाद में जो भी दुकान वालों को जो तकलीफ़ हो रही थी, इंशाअल्लाह वो तकलीफ़ पूरी दूर हो जाएगी। बहुत हज उम्रा ग्रुप एसोसिएशन की जानिब से हज और उम्रा के ख्वाहिशमंद हजरात से रजिस्टर्ड ट्रैवल्स के जरिए ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाने की ख्वाहिश की गई है। हज उम्रा ग्रुप एसोसिएशन के अराकीन ने मीडिया के जरिए आज़मीन हज और आज़मीन उम्रा के नाम एक पैगाम जारी करते हुए उनसे ख्वाहिश की है कि वो रजिस्टर्ड ट्रैवल्स की खिदमत हासिल करें ताकि धोखाधड़ी से महफूज रह सके। अवाम उन्नास से खुसूसी पेशकश फराहम करने वाली ट्रैवल्स कंपनियों की जानिब राग़िब होकर नुकसान उठाने से गुरेज करने और सऊदी अरब की वजारत हज उम्रा और हिंदुस्तान की वजारत खारजा की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड ट्रैवल कंपनीज का इंतखाब करने की भी तजवीज़ पेश की गई है। ये आज का इंटरव्यू देने का मकसद ये है कि इस साल जो तकरीबन कम बजट के अंदर जो लोग ऐलानात करें और उसकी वजह से जो लोगों को परेशानियां हुई और जो फ्रॉड का शिकार हुए लोग, उस सिलसिले में कुछ मैं कहना चाहता हूँ अवाम उन्नास से। अवाम उन्नास को हमेशा ये आगाह किया गया कि जिस वक्त भी अवाम ये देखती है कि कम बजट जहाँ हो वहाँ पर फ़ौरन पहुँचते हैं और अपने अपने हज और उम्रे के लिए अपनी बुकिंग करवाते हैं। ये ख़ास तौर से हमेशा ऐसा होते हुआ आया है कि जब कोई भी धोखा देना चाहता है तो मार्केट के अंदर कम से कम रेट डिक्लेयर करता है। हम हमेशा हज उम्रा यात्रा ऑर्गेनाइज़र एसोसिएशन की तरफ से हमेशा लोगों को आगाह किया गया कि भाई कम बजट के चक्कर में मत आएँ और अपने हज और उम्रे को सेव करें और एहतियात के साथ अपने हज उम्रे को अदा करें। रियासत मध्य प्रदेश से एक गैर मुस्लिम लड़की के बुर्का पहनने और मुसलमानों की जानिब से लड़की को डांट डपट करते हुए उसे बुर्का उतारने पर मजबूर करता एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कितना जहर घोल दिया गया है। फिरका परस्तों को मुसलमान खवातीन के बापर्दा रहने और बुर्का पहनने पर भी एतराज़ है। अब इन्हें बुर्का भी खटकने लगा है। हिजाब तनाज़ा इसकी ही मिसाल है, जहां एक जानिब बुर्का पोश खवातीन को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब उन्हें बदनाम करने की भी भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। कई शहरों में बुर्का पोश खवातीन
गैर मुसलमान लड़कों के साथ भी घूमती देखी जा रही हैं, तो वहीं गैर मुसलमान लड़कियां भी अपनी पहचान छुपाने के लिए बुर्के का सहारा ले रही हैं। औरंगाबाद में एक बाहिजाब लड़की को गैर मुसलमान लड़के के साथ देखकर मुसलमानों की जानिब से खूब हंगामा आराई की गई। वहीं मध्य प्रदेश में एक गैर मुस्लिम लड़की अपने दोस्त के साथ बुर्के में घूमती पकड़ी गई। लड़की को रोककर मुकामी मुसलमानों ने उसके साथ शदीद डांट डपट की और उसे बुर्का उतारने पर मजबूर कर दिया। मुसलमान लड़कियों का मुर्तिद हो जाना, गैर मुसलमान लड़कों के साथ घूमना फिरना ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जो कि उम्मत मुस्लिमा और उलमाए दीन के लिए तशवीश का बास है। ऐसे में हम सब पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम जोश से नहीं बल्कि होश से काम लें। इस तरह के वाक़यात पेश आने पर बजाय लड़के लड़ने, डराने धमकाने के उन्हें पुलिस के हवाले कर दे ताकि उनके खिलाफ मुनासिब कानूनी कार्रवाई हो सके। मुसलमानों बिलखुसूस नौजवानों को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये उनके और उनके अफराद खानदान को किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर सकता है। वालिदैन, उलमाए कराम, असातिज़ा, हर जिम्मेदार और बाशऊर शख्स से गुजारिश है कि वो इस तरह के वाक़यात के सदबाब के लिए नौजवानों की मुनासिब रहनुमाई करे। कसूरवारों के साथ मारपीट करना या उन्हें मॉलेस्ट करना इस मसले का हल नहीं है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली सी कमी रिकॉर्ड की गई है। मंगल के रोज 3,325 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। मरकजी सेहत महकमे ने बताया कि एक्टिव केसेस की तादाद में कमी आई है। पीर को जहां 47,246 केसेस दर्ज किए गए थे, वहीं मंगल को 44,175 केसेस दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में 17 अमवात हुई हैं। अमवात की कुल तादाद 5,31,564 हो चुकी है। कोरोना से 4,43,77,257 अफराद सेहतयाब हुए हैं। शरह सेहतयाबी 98.7% बनी हुई है, जबकि शरह अमवात 1.18% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। एक दिन में 1,45,309 सैंपल्स टेस्ट किए गए हैं। कुल कोरोना टेस्ट की तादाद 92,59,06,207 हो चुकी है। मुल्क भर में जारी कोरोना टीका अंदाजी मुहिम के जरिए एक दिन में 2,115 लोगों को वैक्सीन दी गई है। वैक्सीन लेने वालों की कुल तादाद 220,66,68,613 हो चुकी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।